नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से कनाडा खालिस्तानियों को लेकर के अपना जो रवैया दर्शा रहा है और भारत पर बेतुका आरोप लगा रहा है, इस बीच अब रॉ के ही पूर्व अधिकारी ने एक बड़ा खुलासा किया है और उनका कहना है कि कैसे इंदिरा गांधी और कमलनाथ के टाइम पर इन खालिस्तानियों का जन्म हुआ है और इनके द्वारा बाकायदा इन्हें फंडिंग भी की जाती है। जी हां, ये चौंकाने वाला खुलासा जो है खुद रॉ के ही पूर्व अधिकारी के द्वारा किया गया है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर के भारत और कनाडा के संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच पूर्व रॉ अधिकारी जेबीएस सिद्धू का बड़ा दावा सामने आया है, या यूं कहें कि यह बेहद चौंकाने वाला सनसनीखेज दावा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस हिंदुओं को डराने के लिए खालिस्तानी आतंकी भिंडरावाले को सामने लेकर आई थी। इंदिरा गांधी, उसके बेटे संजय सिंह, उसके बेटे संजय गांधी और कमलनाथ भिंडरावाले को पैसे भेजते थे। बता दें, इस दौरान पूर्व रॉ अधिकारी जेबीएस सिद्धू का एएनआई के पॉडकास्ट का एक वीडियो सामने आया है और इसमें उन्होंने कई सारे सनसनीखेज खुलासे किए हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं पूर्व रॉ अधिकारी। You also talk about this one incident when you are driving past the Prime Minister's residence and you see a Sikh bodyguard. You write a note. 21st of actually October, 10 days before Mrs. Gandhi was assassinated, I was coming from Connaught Place side on Akbar Road. I just about to take left turn on Safdarjung Road towards Gymkhana Club. I see two policemen, one Sikh and one Hindu. Safdarjung Road is where the Prime Minister's home is. And one Akbar Road is the office. So that confluence, there is a corner, roundabout. And at that time, I saw two policemen, one Sikh and one Hindu, carrying stun guns. My wife was sitting in front of me and my son and daughter. My son still remembers what I said. I said, who has brought the Sikh? This is the easiest, because I knew that they were withdrawn. And it was a sudden shock. I said, this is the easiest and the surest way of Mrs. Gandhi getting assassinated. So next morning I come to office. It was 22nd of October. Then I started writing a note in hand, and then I saw this thing. I said, okay, Mrs. Gandhi will be assassinated within 10 days. This is the easiest and surest way, I wrote. Please do the following thing. Please remove these six forthwith, because tomorrow will be too late. Did not know when are they will kill. And then again I say, please inquire as to how they were brought and whom they have. So I have written that note. I told my secretary Sita Lakshmi, please prepare the envelope on that right to be opened by the addressee only. Then I thought that if they kill her today, then I will be hauled up that I was a part of the conspiracy and I am trying to do my peshbandi. Then I said, Sita, I'll hand over personally to secretary to go. Then I shredded that thing. But you weren't the only one. Already an SOP was in place that the Sikh bodyguards had to be taken off. You've written about that. But Mrs. Gandhi brought them back. And then there was, Mr. Kao had said that two Sikh bodyguards not together at the same time. And then even that SOP was broken. I mean, series of mistakes. Raman has written in his book all this thing, because he used to be attending meetings also. And he has written that two persons very close to Rajiv Gandhi used to attend those top secret meetings. He has not named, but I am sure Arun Nehru or Arun Singh, I have definite information that these two people used to meet Mr. Kao in his operational office. So they were very active. And he has written that they did not have any authority to sit on those meetings. आपको बता दें कि इसमें उन्होंने ये दावा किया है कि आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। इसके बाद ज्ञानी जैल सिंह ने अकाली दल और जनता पार्टी गठबंधन के बीच मतभेद पैदा करने के लिए ऑपरेशन 1 शुरू किया। इसी के तहत इन लोगों ने एक बड़े संत को लाने का फैसला किया। ये ऐसा होगा जो हमारी बातें मानते हुए अकाली दल की नीतियों की आलोचना करेगा। इसके बाद जनता पार्टी भी कुछ कहेगी, उससे उनका गठबंधन टूट जाएगा। बता दें कि इस बीच जेबीएस सिद्धू ने कहा कि इसके लिए ज्ञानी जैल सिंह, संजय गांधी, इंदिरा गांधी और कमलनाथ काम कर रहे थे। ये सब इंदिरा गांधी के कार्यालय अकबर रोड और उनके घर सफदरजंग से चल रहा था। इन लोगों ने भिंडरावाले को खालिस्तान से जोड़ते हुए ये सब करना शुरू किया। इनका उद्देश्य था कि भिंडरावाले का उपयोग हिंदुओं को डराने के लिए
करेंगे। इसके साथ ही खालिस्तान का एक मुद्दा बनाया गया जो उस समय अस्तित्व में था ही नहीं। बता दें कि इस बीच पूर्व रॉ अधिकारी ने तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व, खास तौर से इंदिरा गांधी, संजय गांधी और कमलनाथ की प्लानिंग की पोल खोलते हुए कहा कि खालिस्तान का मुद्दा उठा करके इनकी साजिश थी कि इससे देश के लोग सोचेंगे कि देश की अखंडता को खतरा है और इससे उन्हें राजनीतिक फायदा होगा। आपको बता दें कि उन्होंने ब्रिटेन में भारत के पूर्व उच्चायुक्त और प्रसिद्ध लेखक कुलदीप नैयर की किताब बियॉन्ड द लाइन के हवाले से कहा है कि उन्होंने भिंडरावाले को लेकर एक बार कमलनाथ से बात भी की थी। तब कमलनाथ ने कहा था कि वो एक हाई प्रोफाइल और कड़क संत की तलाश कर रहे हैं जो हमारी बातें फैला सके। इसके लिए कमलनाथ ने 2 संतों का इंटरव्यू किया था। एक संत बेहद विनम्र थे, लेकिन भिंडरावाले ठीक वैसा था जैसा वो चाहते थे। इस दौरान जेबीएस सिद्धू ने आगे ये भी दावा किया है कि कमलनाथ ने कुलदीप नैयर से ये भी कहा था कि वो संजय गांधी और उनकी टीम के लोग भिंडरावाले को पैसा भी दे रहे थे। भिंडरावाले को पैसे भेजने में वो लोग शामिल थे जो कि ऑपरेशन 1 का हिस्सा थे। इसका मतलब ये है कि भिंडरावाले को पैसे देने में न सिर्फ कमलनाथ और संजय गांधी बल्कि ज्ञानी जैल सिंह और इंदिरा गांधी भी शामिल थी। यानी कि कांग्रेस ही भिंडरावाले को प्रोजेक्ट कर रही थी। कांग्रेस ने हिंदुओं को डराने के लिए भिंडरावाले को पैदा किया और खालिस्तान जैसे मुद्दे को जन्म दिया है, जिससे देश की एक बड़ी जनसंख्या यह सोचने लगे कि देश की अखंडता को खतरा है। आपको बता दें कि खालिस्तान का मुद्दा कांग्रेस द्वारा हिलाया गया है। इसकी पुष्टि करते हुए उन्होंने दावा किया है कि भिंडरावाले ने कभी भी खालिस्तान की मांग की ही नहीं थी। वो सिर्फ यही कहता था, बीवी मतलब कि इंदिरा गांधी अगर मेरी झोली में खालिस्तान डाल भी देगी तो भी मैं ना ही करूंगा। भिंडरावाले का उपयोग धार्मिक उपदेशों के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था। साथ ही पूर्व रॉ अधिकारी ने बताया कि कांग्रेस ने अकाली दल से बातचीत की योजना बनाई ताकि उन्हें ऐसा लगे कि समस्या का समाधान किया जा रहा है। 26 दौर की बात चली, जिनमें से कुछ में इंदिरा गांधी भी शामिल हुई। संजय गांधी ने 1985 से पहले का चुनाव भिंडरावाले खालिस्तानी मुद्दे पर जीतने की योजना बनाई। 1982 के मध्य के बाद हमें सूचना मिली कि इंदिरा गांधी की जान खतरे में है। भिंडरावाले स्वर्ण मंदिर में शिफ्ट हो चुके हैं। उसे गिरफ्तार करने की साजिश भी ऐसी रची गई जैसे वो बहुत बड़ा व्यक्ति हो और उसे पकड़ना आसान नहीं था। आपको बता दें कि यही वो दौर था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया था और इसके बाद अगर बात हम करें तो इंदिरा गांधी की जान भी खतरे में पड़ गई थी और अंततः उन्हें भी उनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा हत्या कर दी गई थी। लेकिन जिस तरीके से तब ये जो खालिस्तान का मुद्दा उठा था, अब सीधे तौर पर रॉ के ही पूर्व अधिकारी का ये कहना है कि ये कांग्रेस ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही खालिस्तान के मुद्दे को जन्म दिया था। बकायदा भिंडरावाले को फंडिंग करते थे, उन्हें पनाह देते थे, उन्हें ऐसा प्रोजेक्ट किया जैसे कि इस देश के लोगों को दिखा सके कि भारत की एकता और अखंडता में कितना बड़ा खतरा उत्पन्न हो रहा है। यानी कि हिंदुओं को डराने के लिए, धमकाने के लिए पूरी तरीके से साजिश रची गई थी। भिंडरावाले को इसमें प्रोजेक्ट किया गया था। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम वर्तमान समय की बात करें, साल 2023 की, तो बकायदा यह मुद्दा देखा जा सकता है कि कैसे अभी फिलहाल में जो खालिस्तानी मूवमेंट को अपना समर्थन देते हैं, ऐसे खालिस्तानी लोग इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं जो कि कनाडा से यह कहकर के लड़ाई लड़ते हैं कि वो खालिस्तानियों के लिए, वो सिख के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें पंजाब में खालिस्तान चाहिए, यानी कि एक स्वतंत्र खालिस्तान चाहिए। अब इस मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा बहस चल रही थी। इस बीच अब जो है इसमें भारत सरकार ने 43 आतंकियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कई सारे आतंकी जो हैं वो खालिस्तानी समर्थक भी शामिल है। इससे पहले देखने को मिला कि कैसे जून में निज्जर की हत्या हो जाती है और इसी का जो आरोप है कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भारत की जो खुफिया एजेंसी है रॉ, इन पर लगाया गया है। उन्होंने बकायदा अपनी संसद में यह कहा है कि जिस तरीके से निज्जर की हत्या हुई है इसमें भारतीय खुफिया एजेंसी का हाथ हो सकता है। और इसी के साथ ही उन्होंने भारत के एक डिप्लोमेट जो कि शीर्ष अधिकारी थे उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया, यह कहते हुए कि वो निज्जर की हत्या में जो जांच हो रही है उसमें रुकावट पैदा कर रहे थे। फिर क्या, भारत का एक्शन भी तुरंत देखने को मिला। भारत ने तत्काल प्रभाव से यहां के भी एक सीनियर डिप्लोमेट जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं उन्हें भी तत्काल प्रभाव से
हटा दिया और ये कहा कि 5 दिन के अंदर वो भारत से जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एक बड़ा एक्शन आज ही देखने को मिला है, जहां पर भारत सरकार ने कनाडा से आने वाले तमाम लोगों के वीजा को सस्पेंड कर दिया है अगले आदेश तक। यानी कि सीधे तौर पर भारत इस वक्त खालिस्तान के मुद्दे पर जरा भी दबाव बर्दाश्त करने के मोड में नहीं है। एक के बाद एक जो है इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेते हुए दिखाई दे रही है, फिर चाहे वो कनाडा के डिप्लोमेट्स के मामले में हो, खालिस्तानी मुद्दे को लेकर के हो, या फिर वीजा मामले में लेकर के हो। फिलहाल इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।